Let's start with the session, sir. Uh, so, warm welcome to everyone here. Good morning to everyone. This is in context to the a webinar that we have been assembled here. And to mark the birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose, 125th one, Tecnia's Advanced Studies and its Training and Placement Cell and Institute Innovation Council is organizing this webinar in support with UVA. And the topic of today's discussion is the team building and leadership a perspective through Netaji Subhash Chandra Bose. So let me take this opportunity to give a very brief introduction to Technia's Advanced Studies. I feel privileged to introduce to you to the Tecnia's Advanced Studies is an accredited grade A institution, a premier business and IT school in Delhi, affiliated to IP University and presently offering MBA, BBA, BCA and BA program. It is located as a prime location and has state-of-the-art facilities, erudite faculties, dedicated staff members, and an ambience to fulfill admirable academic pursuit. The uniqueness of this institute is the application-based teaching with world-class pedagogical practices. I would also like to give a very brief introduction of YUVA, which is Youth United for Vision and Action, a bunch of like minded volunteers united with the motive to provide a common platform to youth for exchanging ideas and polemic discussions. And we have between us Sri Sanjeev Sharma who is Rohini's General Secretary of the parent organization under which UVA is spreading its wings in all directions. With us uh, uh, today is a very eminent speaker, Vishal Sharma. I will take some time for giving a brief introduction, but before I proceed further, I would also like to invite Sajan Shankarji. It is because of him and his effort that we are able to organize today's session. And now, to proceed further, I would like to invite our director, sir, for his introduction speech. Dr. Ajay Kumar is the director of Tecnia and Advanced Studies, and he has done PhD from MDU and has more than 26 years of experience in industry and education. Dr. Kumar has conceptualized and conveyed more than 30 national and international conferences and has attended several national and international conferences as guest of honor. He is a member of All India Management Association IMA and lifetime alumni member of Institute of Management Studies and Research, MD University Rohtak. His aim is to work innovatively for the enhancement and betterment of education. A warm welcome, sir. Now, with this, I would like you to give your introduction and key address. First of all, I would like to congratulate the Training and Placement Cell for introducing the Capability Enhancement Program. And this Capability Enhancement Program, it's been a series of capability enhancement programs where the proficiency test, soft skills, seminar, development schemes, and corporate orientation, career counseling. This is with reference to the character building in a student so that they can be able to do the things for the nation's upliftment in time to come and be a build a leadership in their persona and build a team. What next on that? Netaji Subhash Chandra Bose 125th birth anniversary to commemorate that part and to enhance those things for which Netaji laid down their life. I feel that Mr. Vishal Sharma, co-founder Mission Netaji Delhi with Yuva, are going to be able to transform the young budding professionals from MBA, BCA, and journalism department to take this team building efforts and leadership. According to recent survey, when we talk of the team building, employees working from home can reduce the productivity up to 21% due to the feeling of isolation. Now, slowly, now it's going back to the normalcy. People are returning after a long sabbatical leave from for the 9 to 5 working lifestyle. Business are now going to redefine, and there is a requirement of team building strategies for people returning to workplace. Team building tactics sound simple, but implementation them can be confusing at first.
Hence, it is crucial to understand the types of team building, how to organize, how they can be implemented, how they can be benefited, what kind of activities we have to take. Team needs to be able to communicate about its problem, why it is a problem, why they cannot can do together, team building exercises that what requires team to work together to solve the hypothetical problems that can be encourage them to develop their problem solving, communication skills, team building activities, hands-on problems, solving activities to highlight that communicating when solving the problems is also going to be helpful. We have to enjoy doing these hands-on activities. It helps us to remember and learn lessons in a much easier way. A team consists of more than one person. It's not a single person affair. When there is no I in team, there the word I will go, we will come, the team will start. Whenever there is going to be word I, the team is going to disintegrate. So we have to talk about the word we are doing. Forming successful team can become a challenge. To have a successful team, a leader must have a background knowledge of every one of the team member so that he will be able to help each one of us in a respectable manner, and it will help them in the later to problem solving which may occur among them. Teamwork in when the employees put aside their personal goals and preferences and work together cooperatively to achieve the team goals. So team building also forms a friendshipness, trust between the employees. Leaders should follow four steps to create a effective team. We can say team building. First is assessment. You have to assess. Leader must be able to assess his members. There has to have a plan. There has to have a plan to execute, and again to evaluate how much plan we will be able to do in good. So good leaders need to establish a good communication, good relations among the team member, so that they will be able to do the job more efficiently. Communication is important part of the process. Information exchange between the individual is a very important point through symbols, through signs, through their behavior, through their conduct. So this is a part of team building. But once we talk about the leadership, how the Netaji Subhash Chandra Bose has done that to make up a Ajad Hind Fauj. The government recently announced that Netaji Subhash Chandra Bose anniversary on January 23rd, which would mark the start of a Republic Day celebration instead of a day alert. Netaji birthdays is also named as Parakram Divas. The announcement of Netaji's statue comes as a challenge at the changes to the India Gates area in the heart of capital and already starting up debate, controversy and questions. A statue of freedom icon Subhash Chandra Bose will be installed in India Gate in Delhi. Prime Minister Dr. Narendra Modi ji declares today in its streets until the statue is ready, a hologram of Subhash Chandra Bose Netaji will be put at the spot, and Prime Minister Modi said sharing an image of that on the same day. So Netaji's statue will be of 28 feet 6 feet and will stand at a spot once featured that King's England's King George V. The statue was removed and shifted in 1968 at a time when the entire nation is marking the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. We are glad that Greece grand statue made of granite will be installed at India Gate, and it would be a symbol of India's indebtedness to him, and Prime Minister Modi has said in tweets. Till the grand statue is come, we have to see that leadership is evolved. When we are talking about Netaji Subhash Chandra Bose, then we what immediately comes in mind, whether or not there is a natural leader born with a combination of talents and traits that enable person to lead others, and they have been a subject of debate across time. In a modern context, we come to know and recognize that leadership comes in many forms and through many representation. Once it was a thought that someone with a presence of mind, innate intelligence, engagement of personality was destined to be a leader for a leadership. But modern research and experience shows us otherwise. What is leadership? And we talk about the management. Leadership is a function of leader, followers,
and a situation. Leader, follower, and a situation. Every situations demand a new dimension of leadership is going to evolve, and there is going to leader who inspire the followers to make it commitment against all odds. They will have to achieve its objective through all odds. So just as a successful heart surgeon has to have a series of skill sets, so does a dynamic leader. A television producer must both direct and provide space for talent to create balancing control and confidence and trust. So this awareness about variations in leadership styles serves our discussion for today's as groups and team members and the students will be talking about over here how the leadership can be evolved, how we can practice leadership. They may not always be the person who holds the title, status, or the role. Sometimes the situations demand that out of blue moon, a simple ray of string will come and ray of light of hope will come. Everybody will be joining hands to a core and leadership is evolved. You never know the situations arises and there has to lead a leader on that part. So with this, I feel that we are in the safe hands as far as the resource speaker, Mr. Vishal Sharma and Sanjay Sahani ji are concerned, and they will be Sergeant Shankar ji Prasad. They were have been able to kind enough to give their valuable time over here, and students will definitely going to understand their experience, and their experience will be shared over here, and new learning curve will be established in the mind of new budding manager and professionals in time to come, when they will be taking the reins in their hand of the nation. That time these kind of words which is motivating them will be sounding in their mind, and when they require it most, so at that time, like जब कर्ण को जरूरत पड़ी थी उसकी युद्ध भूमि में उस तीर को चलाने के लिए, अर्जुन के सामने सब कुछ भूल गया था। तो हम ये चाहेंगे कि जो बच्चे हैं हमारे वो आपकी सारी बातों को याद रखें, और जिस टाइम उस चीज़ की जब ज़रूरत हो उसको रिकलेक्ट कर पाएँ, और भूले नहीं उस चीज़ को जो हमने उनके बारे में विद्यमान करना चाह रहे हैं संस्कार के रूप में। विशाल शर्मा जी आपका स्वागत है यहाँ पे, साजन शंकर जी आपका भी स्वागत है, संजय साहनी जी आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा मैडम इस कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम को प्लीज़ आगे बढ़ाएं, ताकि बच्चों के अंदर हम कुछ नया करवाने का जज्बा भर पाएं, और बच्चे हमारे एक नई रूपरेखा के साथ समाज में एक प्रस्तुतिकरण का उदाहरण पेश कर सकें, ताकि लोग इनका अनुसरण करें और ये जहाँ पे जाएं चांद और सूरज बन के चमके और दमके। Thank you very much, all the people present over here, for giving me to grace this occasion. Thank you all. Welcome you all. God bless you. Thank you. Thank you so much, sir. It was indeed very enlightening and, of course, motivating and encouraging. And the way you have welcomed everyone and the way you spoke in the two languages, it was commendable. Thank you so much for your kind words, sir. Now, I will proceed further and let me take this opportunity to speak about the relevance of the today's session. We are going to celebrate the 125th birth anniversary of Netaji Subhas Chandra Bose, and the topic which we have taken, that is team building and leadership. What else can be the example except the Netaji, whose life is an example of leadership and team building. He an enthusiastic, disciplined, selfless, and inspired leader with strong confidence on his ability and a focused goal. He exhibited development of a dedicated team, strong command, cool composure, and correct judgment. He clearly demonstrated his clear vision, strong responsibility, and high risk taking capability. Now, he abandoned his life of ample wealth and comfort and dedicated to the nation. So, to speak about the qualities of Netaji, the one of the best resource person which we can organize for the program is Mr. Vishal Sharma. Vishalji, you are most welcome. And before I really give it to you, I just like to introduce to the audience here, Vishal Sharma ji. You are a nationalist, social activist, and founder member of Mission Netaji. You and your team founded this organization in 2006 to do research on Netaji. You and your team worked on Netaji's life, his various contributions, along with the mystery about his death. The organization, that is Mission Netaji, has come up with various books on Netaji, and few of the books have already been made into films and
web series. The bestseller books of the organization, India's biggest cover up and conundrum were there. In year 2018, director Ekta Kapoor made a famous web series, Bose Dead or Alive, and in 2019, National Award winner director Srijit Mukherjee made a film on Gumnami. This movie was based on your book, Kamandaram, which shows the early life of Netaji's. This movie is currently streaming on Amazon Prime. By profession, Vishalji, you are an expert of foreign language and you are working with DPS Society and an export house. So warm welcome here, and the context here that we want to enlighten the student and motivate and encourage them to go for innovative and entrepreneurial venture so that the dream of vocal for local and made in India concept is visualized on in true respect. So thank you so much, Vishaji, for sparing your time. And now I just hand over to Mike to you to proceed with the process. First of all, thank you so much. Thank you so much, Team Tecnia, Team Yuva. You have been doing this for a long, long time and you have been organizing such talks. Right now, we are just having virtual talks, you can say. But earlier, we were able to meet each other physically and we were able to meet all the students also in various institutes that you have organized this talk. So I would like to thank Sajan ji, Ashutosh Trivedi ji, Dr. Ajay Kumar. I'm really very impressed with your speech that you have given on leadership and how a leader should work. And Nivedita ji, thank you so much for giving me this opportunity to speak to future of India about Netaji Subhas Chandra Bose. So without taking much time, I would like to start. Some people basically write history with the pen. कुछ लोग कलम से इतिहास लिखते हैं और कुछ लोग अपने पराक्रम से और कुछ किसी के जुड़े किसी के साथ जुड़े रहने के कारण. लेकिन अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने खून, साहस और संकल्प से इतिहास को लिखा था तो वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे. उनके नेतृत्व ने हजारों भारतीयों को मातृभूमि के लिए मरने के लिए प्रेरित किया तथा उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना, आपका इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जिसे हम जानते हैं, आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर आज के समय में होते तो वह स्वतंत्र भारत को, हमारे आज के भारत को एक नया आयाम देते. वह अमर है और आज भी करोड़ों भारतीयों के प्रेरणा स्रोत हैं. अपने ओजस्वी भाषणों के साथ वे हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे तथा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने सैनिकों में गजब का उत्साह भर देते थे. इन्हीं विशेषताओं के कारण, यही कुछ विशेषताएं हैं जिनके कारण अंग्रेज सरकार उनसे थर्राती थी. जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसके बाद माता पिता को थोड़े से समय में आभास हो जाता है, उन्हें एक आइडिया लग जाता है कि किस डायरेक्शन में हमारा बच्चा जा रहा है. और ऐसा ही आभास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पेरेंट्स को पहले से ही हो गया था. नेताजी का जन्म आज से 125 साल पहले 23 जनवरी 1897 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था. नेताजी के पिता श्री जानकी नाथ बोस एक प्रख्यात वकील थे तथा उनकी माता श्रीमती प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी. एक किशोर के रूप में सुभाष श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से काफी प्रभावित थे. कहा जाता है कि जो उम्र है, जिस उम्र से हमारे आज के बच्चे निकल रहे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी निकल रही है, ये वो उम्र होती है जिसको आप कच्ची मिट्टी भी बोल सकते हैं कि जिस शेप में आप ढालेंगे उस शेप में वो ढल जाएगा और वो भविष्य में भी आप उसका रूप देख सकेंगे. बचपन से ही कुशाग्र सुभाष बाबू ने अपने पिता की इच्छा अनुसार, जबकि सुभाष जी का मन नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने पिता की आप कह सकते हैं एक तरीके से चुनौती को स्वीकार करते हुए इंग्लैंड से आईसीएस की परीक्षा अव्वल दर्जे से पास की. परंतु देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए उन्होंने इस विशिष्ट पद का भी त्याग करा. पूर्ण रूप से देश की आजादी के लिए काम करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय बना लिया था. ध्यान देने वाली बात यह है, आज की युवा पीढ़ी को, हम सभी को जो एक चीज को ध्यान देना चाहिए कि
हम लोगों की डिमांड पूरे नहीं होती है। हम लोग ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ पहुंचना है, हम इस चीज के ऊपर अपनी लाइफ को फोकस करके रखते हैं। लेकिन 24 साल की छोटी सी उम्र में 1921 में नेताजी ने आईसीएस जैसे पद को ठुकरा दिया, जिस पद पर पहुंचने के लिए लाखों नौजवान सपना देखा करते हैं। नेताजी ने अपना संपूर्ण जीवन आजादी को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। वो उन कुछ मौका परस या कुछ आप बोल सकते हैं अपॉर्चुनिस्ट लोगों की तरीके से नहीं थे, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं विदेशों में गुजारी, लेकिन अपनी अंतिम अवस्था में वो भारतीय आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। नेताजी ने 1921 में देशबंधु चित्तरंजन दास के अधीन काम करना शुरू किया और थोड़े ही समय में वे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिनती में आने लगे। उनके उग्र स्वभाव व अंग्रेज सरकार के विरोध करने के कारण उन्हें कई बार 1920 से लेकर 1941 के बीच तक अंग्रेज सरकार ने नेताजी को 11 बार कारावास की सजा सुनाकर जेल भी भेजा। इसी बीच कई बार उनकी तबीयत भी काफी खराब हुई, परंतु नेताजी ने कभी भी किसी परिस्थिति या किसी भी चुनौती के साथ समझौता नहीं किया। एक बार किसी को जेल भेजने का आप मतलब समझते हैं? जब आप किसी को एक बार जेल भेजते हैं तो उसकी साइकोलॉजी को इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, इस तरीके से चेंज करने की कोशिश की जाती है कि जिस रीजन से उसे जेल भेजा गया है कि वो आने वाले भविष्य में उस काम को कभी दोबारा न करे। लेकिन नेताजी को 11 बार जेल भेजा गया और इसमें बीच में उनकी कई बार तबीयत भी खराब हुई, कई बार उन्होंने हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे भी बैठे, उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ जुटे रहे। एक बार की बात है, नेताजी की मुलाकात बहुत फेमस, उस टाइम की बहुत फेमस बंगाली संत माँ आनंदमयी से हुई, जिन्होंने उन्हें राजनीति छोड़ने और आध्यात्मिकता में आने की सलाह दी। नेताजी ने कहा कि माँ, पहले माता जी उन्हें बोलती हैं, सुभाष, तुम्हारे पास बहुत व्याप्त रूप में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए तुम राजनीति में अपना समय और अपना जीवन बर्बाद ना करो। नेताजी ने कहा, माँ, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैंने ये तय किया है कि अपना ये जीवन मैं भारत माँ के लिए दूंगा और अगला जीवन मैं आध्यात्मिक गतिविधियों को दूंगा। आप सोच सकते हैं, एक छोटी सी उम्र में जब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो कि आप किंग के लिए काम कर सकते हैं, आप ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर सकते हैं, या उन लोगों की तरीके से काम कर सकते हैं जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का उस समय पे पूरा उपयोग किया। लेकिन नहीं, नेताजी ने एक पहले से ही रास्ता छोटी सी उम्र में सोच लिया था कि उन्हें भारत को आजादी दिलाने के लिए ही काम करना है। नेताजी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया, 1937 तथा 1939 में। और 1939 में तो उन्होंने गांधी के प्रत्याशी को ही हराकर अध्यक्ष प्राप्त किया। और अगर ये कहा जाए कि नेताजी ही कांग्रेस के अंतिम निर्वाचित अध्यक्ष थे, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो केवल एक ही परिवार से इस पद का उत्तराधिकारी चुना जाने लगा। यहाँ पर एक और घटना का मैं संदर्भ करना चाहूंगा। 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी पर गांधी की चुप्पी रही, तब गांधी और नेताजी के बीच में मतभेद का शुरुआत होना शुरू हो गई थी। नेताजी अंग्रेज सरकार को भारत छोड़ने के लिए अल्टीमेटम देना चाहते थे। जब इस विषय पर बात करने के लिए वे गांधी से मिलते हैं, तो गांधी का कहना था, सुभाष, मुझे नहीं लगता कि अपने दुश्मन को उसकी विपत्ति के समय दबाना ठीक होगा। नेताजी के कठोर व स्थिर मनोभाव के कारण गांधी से उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। आप अगर देखेंगे तो एक नौजवान पहले आईसीएस क्लियर करता है, कांग्रेस में रहता है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार होता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद वो वहां से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी का गठन करता है। तो जिस विषय के लिए आज हम जुड़े हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी,
जो नेतृत्व वाली क्षमता हम नेताजी के अंदर ढूंढने की बात कर रहे हैं, उसके बतेरे हर को यहाँ पे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं कि किस तरीके से नेतृत्व और एक बहुत ही कुशल नेतृत्व की क्षमता नेताजी में बचपन से ही थी। नेताजी ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और बड़े ही नाटकीय तरीका से 1941 में अपना गृह त्याग करके वह काबुल होते हुए जर्मनी पहुंचे। वहां से उन्होंने रेडियो के माध्यम से अंग्रेज सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उन्होंने कहा, पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो भारत को गुलाम बनाकर रख सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो शब्द हैं जिन्होंने युवाओं को क्रांति के लिए तैयार किया। नेताजी ने सभी युवाओं को एकजुट किया, बल्कि उनके विचारों में भी क्रांति ला दी ताकि वे स्वतंत्रता संग्राम में आगे आकर इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले सके। उन्होंने छात्र और युवा आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए एक आक्रामक और हिंसक लड़ाई की शुरू से ही वकालत की। जून 1943 1943 में वह पनडुब्बी की एक लंबी व बहुत खतरनाक यात्रा कर टोक्यो जापान पहुंचे, जहां पर जापान के प्रधानमंत्री तोजो तथा श्री राज बिहारी बोस द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां पर सिंगापुर तथा अन्य पूर्वी इलाकों के लगभग 50,000 युद्धबंदियों को एकत्रित कर आजाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के कब्जे से अंडमान निकोबार को आजाद कराया और 30 दिसंबर 1944 को 1944 में वहां पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया। वहीं दूसरी तरफ मोइरांग, इम्फाल, कोहिमा पर भी आजाद हिंद फौज ने अपनी विजय पताका लहराई। नेताजी ने दिल्ली चलो तथा जय हिंद का नारा दिया, जिसका उद्घोष आज भी हमारी सेना करती है। अभी तक जो हमने नेताजी के बारे में जाना है, उससे हमारे को ये पता लगता है कि किस नेतृत्व करने वाली शक्ति का उन्हें पहले से आभास था, या जो ज्ञान उनके पास पहले था, जिसका उन्होंने पूरी तरीके से हमारे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। जब आप एक राष्ट्रीय नेता के स्तर पर जाते हैं और विदेशों में उन देशों से मदद मांगने की कोशिश करते हैं जो उस समय ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, और उनको एकजुट करके साथ में अपने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, और इसका सभी देश और उस समय के सभी बड़े बड़े विश्व के नेता इस बात का समर्थन करते हैं और नेताजी को पूरा मान सम्मान देते हैं। इससे हमें पता लगता है कि वो कोई एक आम शख्सियत नहीं थी, वो कोई साधारण शख्सियत नहीं थी, वो एक शक्तिशाली शख्सियत थी जिसको सारे देश और सभी बड़े नेता उस समय मानते थे। एक दिन की बात है, आईएनए के जीतने के बाद जब नेताजी सिंगापुर गए, तो वहां पर उन्होंने भारतीय प्रवासियों की, भारतीय लोगों की एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने अपने प्रसिद्ध शब्द बोले कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उन्होंने डोनेशन मांगा। वहां पर उन्हें कई मालाएं भी पहनाई गई और उन मालाओं को जब नीलाम किया गया, तब जो सबसे पहली वाली माला थी, तब उस जमाने में उसको 1 लाख रुपए में खरीदा गया। ये सारी चीजें ऑन फैक्ट हैं, आप चाहें आप इसको देख सकते हैं अगर आप इसे रिसर्च करें। एक ही बैठक में, एक ही उसी बैठक में नेताजी 1 करोड़ रुपए नकद जुटाने में सफल रहे। ऐसा था हमारे नेताजी का जादू। वर्ष 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर हुए परमाणु हमले की घटना ने इतिहास को बदल डाला। जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उस समय नेताजी सिंगापुर में थे। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी विमान से टोक्यो की यात्रा के लिए निकले और कहा जाता है कि ताइपे के पास विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, जिस पर इतने सालों बाद भी विवाद कायम है।
भारत की सरकार ने नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए शाहनवाज कमेटी, खोसला आयोग, जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी आयोग का गठन किया। जो अंतिम आपका आयोग था, कमेटी थी मुखर्जी आयोग। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को 17 मार्च 2006 में संसद में पेश किया गया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि नेताजी की मृत्यु 1945 की विमान दुर्घटना में नहीं हुई है। नेताजी से कई जुड़ी हुई घटनाएं चर्चा में रही। कहा जाता है कि फैजाबाद में भगवान जी के रूप में नेताजी रहे। गुमनामी बाबा नामक एक व्यक्ति जो 1985 1985 तक फैजाबाद में रहे, अयोध्या में रहे, उनके जीवन और नेताजी के जीवन में कई समानताएं देखी गई। अन्य समानताओं के साथ साथ उनकी लिखावट भी एक जैसी थी। बताया जाता है कि नेताजी के मित्र व सहयोगीगण उनसे मिलने, साथ ही लीला रॉय, डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय, समर गुहा और अतुल सेन जैसे क्रांतिकारी नेता भी इस बात को अच्छे से जानते थे। नेताजी का इस तरीके से बीच में से चले जाना ऐसा संभव नहीं था, और इस बात का शंका खुद मोहनदास करमचंद गांधी को भी थी, और उन्होंने कहा था अपने एक वक्तव्य में, मुझे मालूम है कि सुभाष जिंदा है। अब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपकी युवा ऑर्गेनाइजेशन और साजन जी जैसे लोगों की वजह से, जो इस विषय पर इतना फोकस करके काम कर रहे हैं और हम सब आपस में एकत्रित होकर इस बात को कर पा रहे हैं। हम लोगों ने, और आप भी इस बात को जानते हैं, हम सभी लोगों ने वो समय भी देखा है कि नेताजी का जन्मदिन कब आ रहा है, आजाद हिंद गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का दिन कब आ रहा है, किसी को कानो कान पता नहीं लगता था, कोई कार्यक्रम नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। मैं आपको अगर खुद बताऊं तो जब मैं स्कूल में था तो मुझे नहीं मालूम था कि नेताजी का जन्मदिन कब आता है। एक एज के बाद, खास जब मैं 8th क्लास में पहुंचा, उसके बाद से फिर मुझे लगा कि नेताजी का जन्मदिन आता है, लेकिन हम इसे वैसे क्यों नहीं बनाते जैसे हम 2 अक्टूबर को बनाते हैं या जैसे हम 14 नवंबर को बनाते हैं। ये चीज तभी से मेरे को लगने लगी। इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, और जब अपनी स्कूल कंप्लीट होने के बाद और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ मित्रों के साथ मिलके 2005 में जब हम लोगों ने महसूस किया कि जानबूझकर शायद नेताजी के योगदान को भुलाने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोगों को लगा कि अब संगठित होकर रहस्य को खोजने के लिए व्यवस्थित तरीके से जांच करने की जरूरत है। साल 2005 के अंत तक हम लोगों ने मिशन नेताजी ट्रस्ट का गठन किया तथा 2006 में जल्दी ही सीधा मार्ग लेते हुए हमने सरकारों के उच्चतम स्तरों के सवाल पूछना शुरू कर दिए। नेशनल आर्काइव से भी संपर्क स्थापित किया गया। मिशन नेताजी के जो सह संस्थापक सदस्य हैं, जो को फाउंडर हैं, श्री अनुज धर जी, आप सभी उन्हें जानते हैं। आप गूगल पे देखेंगे, आप चेक करेंगे रिसर्चर और नेताजी, तो अनुज धर का नाम सबसे पहले आता है। श्री अनुज धर ने इस विषय पर जितना काम किया है उसका वर्तमान में कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से अपना जीवन इस रहस्य को सुलझाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने नेताजी पर कई किताबें लिखी हैं, जो एक तरीके से हम सभी के शोध का परिणाम है। उनकी किताब जिसका आपसे जिक्र निवेदिता मैम ने भी किया, जैसे इंडिया स्पीकर्स कवर अप, जिसका अनुवाद हिंदी, बांग्ला, मराठी में किया जा चुका है। उनकी नई किताब कॉनन्ड्रम, जिसमें सरकार द्वारा किया गया अभी तक जो भी कार्य उस पर विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसा कि निवेदिता जी ने बताया कि अब वो समय आ चुका है कि जो जो व्यक्ति इतने नेतृत्व की शक्ति का जो धनी है, उसके बारे में आज की पीढ़ी को बताया जा सके, जिससे कि हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो भारत का भविष्य है, वो उससे प्रेरणा प्राप्त करके इस विषय पे काम कर सके। इसी मुहिम में जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा अच्छे कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई। तो ALT बालाजी ने भी 2018 में हमारे ही इस कार्यक्रम पे नेताजी के ऊपर एक कार्यक्रम बनाया, वेब सीरीज बनाई, बोस डेड और अलाइव, जिसके अंदर श्री राजकुमार राव ने नेताजी की भूमिका निभाई। 2019 अक्टूबर में नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर ने हमारी किताब पर एक मूवी बनाई जिसका नाम गुमनामी है,
जिसको अमेजोन प्राइम पे आप सब भी देख सकते हैं। ऐसा देखा जाता है कि पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने इस नेतृत्व को पहचानने के लिए या इस नेतृत्व की क्षमता को सामने लाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं किए। तो जब सत्ता में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, हमने इनसे पहले भी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनसे भी हमने पत्राचार करके कई बार उन्हें लेटर लिखा और इस विषय पे काम करने की कोशिश करी। उसी तरीके का एक लेटर हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जब ये नई सरकार आई मोदी जी, तो हमने इस सरकार को भी वो एक लेटर लिखा और हमने कहा कि नेताजी के रहस्य पर से पर्दा उठाया जाए और जिससे कि आज युवा पीढ़ी है उसे नेताजी से कुछ सीखने को मिले और उनका नेताजी का सच सबके सामने आए। 26 मई 2014 को जब मिशन नेताजी द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस विषय पर ध्यान देने के लिए व नेताजी से जुड़े सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए लिखित आग्रह किया गया तथा साल 2015 में 14 अक्टूबर को मोदी जी ने नेताजी के परिवार के सदस्यों तथा मिशन नेताजी हम सभी को अपने घर पर बुलाया, जहां पर 2.5 घंटे की विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि सरकार इस दिशा में उचित कदम उठाएगी तथा नेताजी से जुड़ी हुई फाइलों को 23 जनवरी 2016 से सार्वजनिक किया जाएगा। अभी तक कुछ फाइलों को सार्वजनिक किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ फाइलें ऐसी हैं जिनका सार्वजनिक किया जाना बाकी है। इस विषय में खासकर ये नई सरकार आने के बाद जब नेताजी से जुड़ी हुई फाइलों को डिक्लासिफाई किया गया, देखिए हम कभी किसी व्यक्ति से तभी कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, तभी कुछ सीख सकते हैं जब तक कि उसको हम पढ़ेंगे नहीं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे को इतिहास की किताबों में उन लोगों के बारे में ज्यादा पढ़ाया गया जिनको वास्तव में हमें पढ़ना चाहिए था। जब इस विषय पर डिक्लासिफिकेशन शुरू हुआ तो गुमनामी बाबा प्रकरण एक सुर्खियों में आया। लंबे अरसे से कहा जा रहा है कि गुमनामी बाबा जो फैजाबाद में रहते थे वही नेताजी थे। मिशन नेताजी ने इस विषय पर खोज व काफी जांच पड़ताल की, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ, गुमनामी बाबा और नेताजी में काफी समानताएं थी। इस संदर्भ में तत्कालीन यूपी के सीएम अखिलेश यादव जी ने हमसे आग्रह करके 13 फरवरी 2016 को अपने आवास पर मिलने के लिए बुलाया। हमने अखिलेश जी से भी यह आग्रह किया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 31 जनवरी 2013 के निर्णय के अनुसार गुमनामी बाबा के सम्मान की जांच हो तथा उसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शनी के लिए जनता के लिए रखा जाए और एक कमीशन बनाया जाए जिसपे गुमनामी बाबा कौन थे इस विषय पे पता लगाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की बात कही, जिसके परिणाम स्वरूप 26 फरवरी 2016 को फैजाबाद कलेक्ट्रेट में स्थित कोषागार में खोलकर गुमनामी बाबा की सारे सामान की जांच का काम शुरू हुआ। उसमें अभी तक जो भी सामान मिला है वो किसी न किसी रूप से नेताजी से ही जुड़ा हुआ है। नेताजी के परिवार के सदस्यों की फोटो, नेताजी की रोलेक्स ओमेगा की घड़ियां, जर्मनी की दूरबीन, नेताजी के चश्मे, वर्दी, विदेशी मुद्रा, हाथ के बने हुए नक्शे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े हुए कुछ बुक्स, मैप्स और इसमें आरएसएस प्रमुख गोलवालकर जी का पत्र भी शामिल है। अब तक जो भी सामान मिला है उससे साफ हो जाता है कि जो व्यक्ति वहां पर रह रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले नेताजी के साथ आखिर हुआ क्या। इसके लिए हम सभी को मिलकर सरकार पर तो दबाव बनाना ही पड़ेगा कि वो जानकारियां सार्वजनिक करे, साथ ही इस प्रकार के जो कार्यक्रम है उनका भी हमारे को पूरा सहयोग लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है कि
2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद उनके द्वारा इस संदर्भ में काफी कदम उठाए गए। हम लोगों ने उनसे डिमांड करी थी कि आपका रेड फोर्ट के अंदर 75वीं वर्षगांठ पे जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की थी फ्लैग होस्टिंग होनी चाहिए। वो आए, उन्होंने आपकी 75th एनिवर्सरी पे रेड फोर्ट के अंदर फ्लैग होस्टिंग करी। नेताजी रिसर्चर्स का और परिवार वालों का उनसे अनुरोध था कि आप नेताजी का म्यूजियम बनाएं। लाल किले में म्यूजियम बनाया गया। कई सारे रिसर्चर्स, हम लोगों का और जनरल जी.डी. बख्शी का बहुत लंबे समय से मोदी जी से प्रार्थना थी कि नेताजी का एक स्टैचू एक ऐसी जगह पे स्थापित किया जा सके जिससे कि जब आने वाली पीढ़ी, मैं, आप, हम सब अपने परिवार के साथ इंडिया गेट पे घूमने जा सके और कोई परिवार का सबसे छोटा सदस्य पूछे कि पापा या मम्मी ये स्टैचू किनका है, तो हम गर्व से बता सकें ये नेताजी का है। जब तक आप किसी चीज को देखेंगे नहीं, तब तक आप उस चीज के बारे में जानेंगे नहीं, आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। हम बहुत, जैसा सर ने बोला, जैसे श्री अरुण कुमार जी ने बोला कि बहुत बढ़िया कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है। इससे आने वाली जो भारत की युवा पीढ़ी है वो नेताजी को देखेगी, नेताजी से जुड़े हुए प्रश्न पूछेगी। नेताजी का संपूर्ण जीवन अगर आप देखें, एक बहुत ही कुशल नेता के रूप में, जैसा डॉक्टर अरुण कुमार जी ने अपनी उद्घोष में कहा, एक नेता वो होता है जो सबको साथ में लेके चलता है। नेताजी का समय काल वह था जिसके अंदर हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग आजाद हिंद फौज के अंदर थे और सबने देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने के लिए शीश पे अपना वो झंडा उठा के आगे बढ़े। उस नेतृत्व को पहचानने की जरूरत है कि क्या क्षमता थी उस नेतृत्व की जिसने विदेशों में जाकर सभी शक्तियों को एक करके अपने स्वतंत्रता संग्राम को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करी। नेताजी के बारे में जितना पढ़ा जाए, जितना जाना जाए, कम है। उनका संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए एक संदेश की तरीके से है जो हमारे को आने वाले जीवन में बहुत लंबे समय तक प्रेरणा देता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आज हमारे पास यहाँ पे जो 170 166 नंबर इज अ वेरी गुड नंबर आई गेस, एंड दीज स्टूडेंट्स, आई थिंक अगर हम में से 10% बच्चे भी नेताजी से जुड़े हुए जिस प्रकरण के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, या जो नेताजी की लीडरशिप क्वालिटीज हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं, अगर हम में से 10% भी इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये नेताजी का 125वां जन्म दिवस है। ये कई रूप से विशेष है। तो यहाँ पर हम एक ये प्रेरणा ले सकते हैं। हम बात की किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं जाते, किस गवर्नमेंट ने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, उस कंट्रोवर्सीज पे हम नहीं जाते, लेकिन एक लीडर को उतना सम्मान और उतना मान जरूर मिलना चाहिए जिसके लिए वो वास्तव में हकदार थे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और मैं एक बार फिर से साजन जी का, निवेदिता जी का, डॉक्टर अरुण कुमार जी का, युवा ऑर्गेनाइजेशन का और टेक्निया इंस्टीट्यूट का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि आज की युवा पीढ़ी जो आने वाले भविष्य है, जो आने वाले भारत का भविष्य है, उनके साथ नेताजी के विषय में इस चर्चा को रखने का मौका दिया, जिससे कि मैं उन्हें बता सकूं और वो कुछ सीख सकें कि नेताजी ने इस देश के लिए क्या किया था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विशाल जी। आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जो महत्वपूर्ण घटनाएं उसको यहाँ पे शेयर किया और आपने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक एक अलग ही सेना बनाया और कैसे भारत की स्वतंत्रता में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। वो उनकी लीडरशिप स्किल्स थी, टीम मैनेजमेंट स्किल्स को आपने जैसे यहाँ पे शेयर किया है। आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को जरूर मोटिवेट किया होगा और जैसा कि आपका एक एक्सपेक्टेशन, हमारी भी एक्सपेक्टेशन है कि आउट ऑफ दिस 176 इफ एटलीस्ट आई कैन गेट सम 10-12 स्टूडेंट्स who are really motivated and who are thinking to out of the box and who think that they can be enterprising and आई मीन लड़ाई हर समय एक अलग तरह की लड़ाई होती है। उस समय आज़ादी की लड़ाई थी, आज की लड़ाई शायद ये है कि हम दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हैं। लड़ाई तो हमेशा होती रहती है,
बस वो जो स्किल्स होते हैं टीम के, लीडरशिप के, टीम बिल्डिंग के, या जो भी कह रही है जीतने के जो स्किल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, उसको आपको यूज़ हर स्टेज पे कर सकते हैं। तो शायद नेताजी के जीवन से जो आपने बताया उदाहरण ले करके बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स ज़रूर मोटिवेट होंगे। और जो अभी की जो लड़ाई है, स्पेशली जो इकोनॉमी की बात करें, कोविड की बात करें, जो आजकल जो थोड़ा एक थोड़ी सी मायूसी सी छाई हुई है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यू कैन सी दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन बिकॉज ऑफ ऑल दिस। सो इट इज़ ऑल्सो प्लेटफॉर्म, इट इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन जहाँ पर से कि बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और हम लीड कर सकते हैं एंड इंडिया को ग्लोबल पावर बना सकते हैं। So thank you so much, Vishal ji, for your time, for your gracious presence, and for your kind words, motivating words to the students. Thank you so much. Now, I would like to invite Sergeant Shankar Prasad ji to speak something, to give away a vote of thanks as well. Sergeant जी की मैं क्या बात करूँ, he is part of Tecnia only. अब जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं साजन जी को नॉक कर देती हूँ कि साजन जी मुझे ये इवेंट कराना है, और साजन जी is always there helping us. Let me tell you the students that you are working as a advocate and you are member of Bar Council of Delhi, and you are also associated with the RSS Jira College Vidyarthi particular group. And with this you have lots of good resource persons with you. You always stay connected with highly motivated and enterprising guys. So आपको मैं invite कर रही हूँ, and I would also like to request that you kindly give away the vote of thanks to here. Thank you so much, Rajan ji. Thank you, Dr. Nivedita ji, for such a beautiful introduction. And I just want to, without taking much time, I just want to thanks all today, all the eminent dignitaries who are present today, and without whose contribution, this successful program cannot be cannot be conducted in this way. So I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates, Dr. Ajay Kumar ji, Dr. Nivedita ji, and all the dignitaries who are present there, which I cannot name, for their presence and contribution to make this webinar a great success. I further extend my gratitude to our chief guest, Dr. Vishal Sharma ji. विशाल शर्मा जी डॉक्टर नेताजी विषय के ऊपर अपने आप में एक डॉक्टरेट ना होके भी एक डॉक्टरेट ही है, एक तरीके से पीएचडी है इस विषय के ऊपर. एंड वी आर टेकिंग हिज सर्विसेज फ्रॉम लास्ट आई थिंक 5-6 years, or we have been enlightened from you, sir. So very thank you. I extend my all gratitude to you, sir. And further, I extend my all gratitude and thanks to all the students who are taking part in this webinar. And I wish that कि जैसे विशाल जी ने कहा कि कुछ लोगों का भी contribution अगर हुआ to learn something from the perspective of leadership qualities which the Netaji has imbibed in society. So we should learn from Netaji, and we all will learn, I hope. And with this hope, I will hand my. Thank you so much. Thank you so much, Sajanji. Thank you so much for this. You were there, you were instrumental in organizing this particular webinar. And thank you so much, Vishaldi, for your kind presence here. It was only Sajan Shankarji that I can really request you to be here. So thank you so much, everyone. Student, we have shared a form with you in the chat box. That is the feedback form for today's webinar. That will also mark your attendance. You all are requested to fill that form. That really motivates us and guide us and gives a understanding that what sort of program we should arrange for further. So kindly mark your presence and give your valuable feedback. And so with this, now I just want to give thanks to everyone. Thanks, Dr. Ajay Kumar, the director of the institute. You are always here. You are the torchbearer. Under your guidance, we are able to come up with good programs. Thank you so much, Vishalji. Thank you so much, Sajanji. And thank you so much for the students and other faculty members. I'm not able to see who all are there, but I am sure there are faculty members, the HODs of the department, Dean Sir, Dr. M.N. Jha, then the faculty placement coordinators, Mayank, Shilpa, and Ambuj, Sania Kukkar, and of course, my entire administrative team, my TNP cell, the IIC cell. Thank you so much, and thanks all for making this program a successful. Thank you so much. And with this, I'm just wrapping up. Goodbye. Stay happy. Be blessed.